dear students, how are you all? I hope you all are very good and enjoying your studies. I'm a faculty for social studies, and today we are going to study chapter 2, which is Ocean and Continents, chapter 2. So now let us start. Now let us start with some questions. So what are oceans and continents? Write their names and describe their distribution on Earth's surface. And how do oceans and continents influence life on Earth, especially human life? Now moving ahead, the blue planet. So why Earth is called a blue planet? Because we have 71% of water on the Earth's surface. So that is why it appears blue out from the outside. That is why we call it as a blue planet. And we have lot of oceans. We have 5 major oceans, and the largest water body on the globe are called oceans, and they are the most Earth surface, and they influence the climate, weather, and human life. They have different countless animals and plants into them. Apart from that, India has a the world has a what is a landmass? Then apart from that, what is a landmass? Landmass is nothing, the brown color that is represented on the globe, which represents your land. Land covers only about 1/4 of the Earth's surface. So the large body of land is called a land masses, and they are continuous stretch of land known as continents. So what is the importance of them? Because of the amalgamation of two, the lives is affected. For example, of the plants, animals, and human life. Their influence can be seen in nature, history, culture, and daily activities. So now, do you know the emblem of Indian Navy bears the motto "Some know Varuna," which me translates "May Varuna be auspicious to us." जो हमारे वरुण देवता हैं, जो कि हमारे स्काई, सी और वाटर के देवता हैं, वो हमें बताते हैं कि जो है वरुण देवता जो हम पे कृपा करें. ऐसे हमारे इंडियन नेवी का मोटो है. सो वी ऑल्सो वैल्यू oceans into our culture. Water and land distribution on Earth. Oceans and continents are not spread evenly across the northern and southern hemispheres. In the northern hemispheres, there are a lot of land masses, and in the southern hemisphere, the oceans are mainly situated in the southern hemisphere, like you can see into this picture. So this is how it is. There are 5 oceans Atlantic. There are 5 oceans on the Earth: Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Southern Ocean, and Indian Oceans. So these are the main oceans. The ocean contains majority of the Earth's water, and but this sea water is unsuitable for drinking or any other purposes. They are salty. So there the fresh water is get by the people from the glaciers, rivers, lakes, and atmosphere, etc. So now moving ahead, oceans. We can see the 5 major oceans as I mentioned you. पैसिफिक ओशन है हमारे पास, अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, आर्कटिक ओशन है, सदर्न ओशन है, विच इज अंटार्कटिक ओशन. एंड इंडियन ओशन अकेला ऐसा ओशन है जो कि किसी देश के नाम की वजह से एक ओशन को नाम मिला है, विच इज इंडियन ओशन, जो कि हमारी कंट्री है. ठीक है. ओशन वाटर जो होते हैं कॉन्स्टेंटली मूव हो रहा होता है, उसके अंदर बहुत सारे करंट्स चल रहे होते हैं, हॉट वाटर करंट, कोल्ड वाटर करंट. ठीक है. और इसके अंदर इंटरकनेक्टेड मरीन इकोसिस्टम चल रहा होता है. इसके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरा एंड फाउना जो है, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, डाइवर्स डॉल्फिन, वेल्स, काउंटलेस फैसिनेटिंग क्रिएचर्स जो है वो आपके ओशन के सरफेस में आपको मिलती हैं. ठीक है. नाउ मूविंग अहेड, वर्ड मीनिंग. Now you have to do it by yourself. Now let us read about the 5 oceans. First is the key features. First is the Pacific Ocean. So what is the feature of Pacific Ocean? वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशन है, जो कि सबसे ज्यादा एरिया को कवर करता है. ठीक है. इसके फीचर्स के अंदर आपका डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन है मरियाना ट्रेंच. ट्रॉपिकल कोरल रीफ आपको मिलते हैं फिजी के पास. इसकी मरीन लाइफ कैसी है? यहाँ पे हमें क्या क्या मिलता है? वेल्स देखने को मिलते हैं, सी टर्टल्स मिलते हैं पैसिफिक ओशन में, शार्क्स मिलते हैं, काउंटलेस स्पीसीज मिलते हैं फिश और कोरल्स के. तो पैसिफिक ओशन बहुत ही इंपॉर्टेंट ओशन है पूरे वर्ल्ड के लिए. इसके अलावा अटलांटिक ओशन जो है वो अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका को कनेक्ट करता है स्ट्रॉन्ग करेंट से, और इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी है ट्रेड और एक्सप्लोरेशन में. इसका क्या फीचर है? इसके पास है बर्मुडा ट्रायंगल, मिड अटलांटिक रिज. ठीक है. मरीन लाइफ कैसी है? यहाँ पे हमें क्या कौन कौन से फ्लोरा एंड फौना मिलते हैं? हमें डॉल्फिन्स मिलते हैं, हम्बैक व्हेल्स मिलते हैं और सील्स मिलते हैं. अगर हम इंडियन ओशन की बात करें तो हमारा इंडियन ओशन सराउंडेड है आपके एशिया से, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से. ये एक वार्मेस्ट ओशन है. ठीक है. और बायोडाइवर्सिटी के लिए हॉटस्पॉट है, एंड वी आर द लकीएस्ट दैट वी हैव दिस ओशन अराउंड अस.
इसके फीचर्स क्या है, हमारे पास कोरल रीफ है मालदीव के पास, यूनिक आइलैंड लाइक मेडागास्कर है हमारे पास, ठीक है। मेरीन लाइफ क्या है, मेरीन लाइफ के अंदर हमें क्या क्या मिलता है, डुगोंग्स, मेंटा रेस, ब्राइटली कलर्ड रीफ फिश, ये सब फीचर्स है हमारे इंडियन ओशन की, जो एक्सक्लूसिवली इंडियन ओशन के अंदर ही हमें मिलती हैं। नाउ मूविंग अहेड, सदर्न ओशन। सदर्न ओशन क्या होता है, ओवरव्यू क्या है, एनसर्कलिंग अंटार्कटिका नोन फॉर आइसी वाटर्स एंड स्ट्रॉन्ग करेंट्स। फीचर्स क्या है इसके, आइसबर्ग्स और ग्लेशियर्स जो कि अर्थ सरफेस को फ्रेश वाटर सप्लाई करने के लिए इंपॉर्टेंट है। और सदर्न ओशन में हमें कौन कौन मिलता है, एम्परर पेंगुइन्स, क्रील्स एंड ब्लू व्हेल्स। आर्कटिक ओशन की बात करें तो ये एक स्मॉलेस्ट और सेलोएस्ट ओशन है जो कि नॉर्थ मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ में लोकेटेड है। फीचर्स क्या है इसके, सीजनल आइस कवर, पोलर नाइट्स, ठीक है। और मरीन लाइफ कैसी है इसकी, यहाँ पे कौन कौन मिलता है हमें, पोलर बियर्स मिलते हैं, वॉल्रस मिलते हैं, आर्कटिक फॉक्सेस मिलते हैं। इसमें आपसे एविडेंट है कि पैसिफिक ओशन जो है वो लार्जेस्ट है, सबसे ज्यादा। इंडियन ओशन थर्ड साइज में है, सदर्न ओशन जो है वो फोर्थ में है, एंड आर्कटिक इज द स्मॉलेस्ट वन, ठीक है। डिड यू नो द मैप ऑफ ओशन शोज दैट इंडियन ओशन इज बॉर्डर्ड बाय एशिया इन द नॉर्थ, अफ्रीका इन द वेस्ट, Australia in the east and southernmost lying to the south. Now on the India's western side lies the Arabian Sea, while to the east lies the Bay of Bengal, both forming important part of Indian Ocean. First, the oceans and natural disasters. Oceans and natural disaster. In the picture of the earth shown earlier, the white patches visible on the globes are clouds. These clouds bring rainfall to the continent. The monsoon rain in India originate in oceans, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे हम एग्रीकल्चर करते हैं, हमारी पूरी लाइफ जो लाइफ होती है पूरे इंडिया की, बहुत सारे लोगों की, वो हमारे रेन सिस्टम पे डिपेंड करती है, ठीक है। और ओशंस और किस लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हेवी रेनफॉल, स्टॉर्म्स, कई बार सुनामीज वगैरह भी ओशंस की वजह से आ जाती है, जो कि डिस्ट्रक्शन जो है वो भी सुनामी की जो भी हमारे ओशंस है उनकी वजह से आ जाती है। डिजास्टर टू रिमेम्बर, 2004 की जो इंडियन ओशन की सुनामी थी, इट इज अ ट्रैजिक वन, इट वाज अ ट्रैजिक वन, जो कि ट्रिगर हुई थी एक इंडोनेशिया के अर्थक्वेक से, जिसने अंडमान निकोबार और आइलैंड, जिसके अंदर 2 लाख लोगों की जान चली गई थी और बहुत सारा हेवी लॉस हुआ था। सुनामी रेयर होती है पर डिस्ट्रक्टिव होती हैं। नाउ वी हैव अडॉप्टेड द सुनामी वार्निंग सिस्टम, और हमारे पास एनडीआरएफ जैसे फोर्स है हमारे पास जो है, अब हमारे पास अच्छी फोर्सेस हैं जो कि पहले ही आइडेंटिफाई करने लग रही हैं, कर लेती हैं अगर ऐसा कुछ जो है ना फाइंड आउट होता है तो कि कोई भी डिजास्टर होने वाला है। नाउ कॉन्टिनेंट्स, होम्स फॉर ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ, व्हाट आर कॉन्टिनेंट्स। सो व्हाट आर कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट जो मैसिव लैंड मासेस होती हैं, ठीक है। हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जो कि अर्थ सरफेस पे हमें दिखती हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन सिविलाइजेशन हुआ। ये अर्थ की हमारी 29% है, ठीक है, और जो कि हमें ऑफर करती हैं फर्टाइल सॉइल, फॉरेस्ट, मिनरल्स और वाटर रिसोर्सेज। हर कॉन्टिनेंट का अपना एक यूनिक ज्योग्राफी है, क्लाइमेट है, इकोसिस्टम है, जो कि नेचुरल और कल्चरल सिग्निफिकेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। काउंटिंग कॉन्टिनेंट्स इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड एट सीन। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका आर यूजुअली काउंटेड सेपरेटली बट कैन बी कंसिडर्ड एज सिंगल लैंड मास, ठीक है। सिमिलरली यूरोप और एशिया को हम एक लैंड मास मान सकते हैं, पर हम उसे यूरोप और एशिया को अलग अलग ही मानते हैं, ठीक है। सो समटाइम्स जियोलॉजिस्ट रेफर इट एज अ यूरेशिया। येट हमने जो है बेसिकली हमारे पास किस तरीके से कॉन्टिनेंट्स, हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। बट समटाइम्स हम सिर्फ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका को एक मानते हैं, यूरोप और एशिया को भी एक मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया। अगर हमें 6 कॉन्टिनेंट माननी है तो अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। दिस इज रिफ्लेक्टेड इनटू फिगर 2.3। सो हम कॉन्टिनेंट को कई तरीके से लिखते हैं, but basically the most accepted form is this 7 continent. So do you know जो ओलंपिक गेम्स के अंदर जो 5 इंटरलॉक रिंग्स हैं वो डिजाइन किए गए थे 1913 के अंदर पीदरे दे ओनकुत्रे कोरबेत के द्वारा, जो कि फाउंडर थे मॉडर्न ओलंपिक के। और ऐसे 5 कलर को चूज किया गया जिसके अंदर पूरे वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज हैं उनके नेशनल फ्लैग का कलर जरूर हो उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से इन 5 रिंग्स को जो है डिजाइन किया गया था, और ये सिम्बलाइज करती हैं कॉन्टिनेंट्स को। ईच रिंग सिम्बलाइजेस वन ऑफ द 5 इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट्स, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप, ठीक है। सो हमारे 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं, सबसे पहले है हमारा एशिया। एशिया हमारा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है जो कि आर्कटिक ओशन से इंडियन ओशन तक फैला हुआ है। इसकी नेचुरल फीचर्स क्या है, हमारे पास हिमालयस है, बहुत सारे प्लेट्यूज है, डेजर्ट है हमारे पास, गोबी, रिवर सच एज यांसे,
लैंडमार्क्स है हमारे पास, जैसे लैंडमार्क्स है हमारे पास ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। हमारे पास और कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ है, बंगाल टाइगर्स हैं, एशियन एलिफेंट्स हैं, स्नो लेपर्ड्स, ये सब चीजें हमारे एशियन कॉन्टिनेंट की फीचर्स हैं। सेकेंड इज अफ्रीका, नोन एज द क्रैडल ऑफ ह्यूमैनिटी, जिसे हम कहते हैं क्रैडल ऑफ ह्यूमैनिटी। अफ्रीका जो लैंडमार्क्स है वो आपके सहारा डेजर्ट से कॉन्गो रेन फॉरेस्ट तक है। इसके की फीचर्स है, इसके अंदर नील रिवर है और माउंट किलिमंजारो है। वाइल्ड लाइफ क्या क्या है इसके अंदर, लायंस, जिराफ, राइनोस, गोरियल एंड चिंपैंजीज। थर्ड है आपका नॉर्थ अमेरिका, अ continent of natural wonders from the Grand Canyon to large prairies, with the climate ranging from Arctic tundra to tropical forest. Features include Rocky Mountains, Great Lakes and Mississippi River. ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स बियर्स, बाइसन, वोल्स एंड बाइल्ड ईगल्स। ठीक है, अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें, rich in natural beauty with the Andes Mountain and Amazon rainforest. Key features include Amazon River, Angel Falls. Wildlife includes jaguar, macaws, anacondas and capybars. एंड अगर हम एंटार्क्टिका की बात करें, सो एन आइस कवर्ड लैंडमास है जो कि जिसका क्लाइमेट जो है वो हार्शेस्ट है। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ आइसबर्ग्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, पोलर डेजर्ट्स हैं। इसकी वाइल्ड लाइफ भी ऐसी होती है, मतलब एम्पर पेंगुइन्स मिलती है, सील्स मिलती है, क्रील्स मिलती हैं, बट इनहेबिटेशन जो है वो यहाँ पे आसान नहीं है, जो यहाँ पे है ही नहीं, मतलब अंटार्कटिका में सिर्फ रिसर्च होती है। नेक्स्ट इज यूरोप। यूरोप हिस्टोरिकली कल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है, बिकॉज इसके अंदर ही आपका इंग्लैंड आता है, जिसने पूरे पूरे वर्ल्ड पे राज किया था एक टाइम पे। एल्प्स है इसके पास, मेजर रिवर्स है इनके पास, फेमस लैंडमार्क्स इनके पास पेरिस, रोम, लंदन। इनकी वाइल्ड लाइफ को इंक्लूड करें तो वोल्स, रेड फॉक्सेस और माइग्रेटरी बर्ड्स जो है वो उसके स्पेशल फीचर्स हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो जो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, वो अपने डेजर्ट्स के लिए जाना जाता है, आउटबैक एंड द ग्रेट बैरियर रीफ के लिए जाना जाता है। अगर हम इसकी वाइल्ड लाइफ की बात करें, द कंगारूज ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर फेमस। सो ऑस्ट्रेलिया की जो सिंबल है वो भी कंगारू ही है। कोआलास है, प्लेटिपसस एंड कैसबोरीज। These are the famous wildlife of Australia. Now let us see island. So what is an island? Now moving ahead, let us see what is an island. Surrounded by the land mass which is surrounded by water, they are said to be our island. So exploring the world islands and polar research. Greenland is the largest island in the world. India itself has more than 1,300 small islands, including two major groups, which is your Andaman and Nicobar Islands in the Bay of Bengal and the Lakshadweep Islands in Arabian Sea. In 1981, Indian Arctic program has been exploring Antarctica, a continent with extremely cold climate और harsh environment, जो कि हमारे 1983 में हमने 2 more stations को establish करा, जो है इसमें से आपकी एक दक्षिण गंगोत्री फर्स्ट था हमारा। ठीक है, इसके अलावा भी हमने एक और जो है वो स्टैब्लिश कर रखी है अपनी रिसर्च स्टेशन, जो कि रिसर्च कर रही है आपके अंटार्कटिका के एनवायरमेंट पे। ठीक है, द हिडन वर्ल्ड ऑफ ओशन लाइफ। ओशन जो है वो लाइफ है, बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो हमें ओशन लाइफ के अंदर मिलते हैं। नाउ मूविंग अहेड, life in the ocean is distributed across different zones depending on depth and the amount of life available. First is the sunlight zone, the top layer where most marine life thrives. The twilight air zone, dimly lit, inhabited by unique species such as squads and lenterfish. Midnight zone, completely dark, home to creatures adapted to extreme conditions like anglerfish. Continent, oceans and the web of life. Oceans and continents are vital part of environment, influencing early aspects of life on Earth. Oceans regulate the planet's temperature by observing heat and provide rainfall water through the water cycle, which ensure crops and fresh water on continents. They are home to countless marine species, serving as a source of food and livelihood of millions of people. So continents, oceans और वेब लाइफ जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमारी सारी लाइफ जो है ओशंस के भी, लैंड मासेस के भी, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। बट with the development of, with the negative impact of the global warming, the entire balance is destroyed now. Why we must protect oceans and continents? Because overfishing, climate change, all of this have a negative impact on the climate and the life of flora and fauna for that matter. Threats to continents. So what is the threat to the continent? They are
they are majorly affected by the human activities. For example, urbanization, deforestation, overfishing, etc. And over exploitation of the oceans are also a major issue. Now, what is the solution? So we can protect by reducing the plastic use, recycle program, and many more steps which have to be taken for conserving our environment. Now, as we already celebrate the World Oceans Day, World Environment Day, to remind ourselves that we have to protect and nurture the continents and oceans for our own benefits. Thank you so much. Now we'll meet into the next class. Till then, you have to take care. Thank you.